Now welcome student, we are going to start the new lesson, that is quadratic equation. Till now we have seen pair of linear equation into variable. It was completed by us on the day of tomorrow, yesterday. So now we are going to start the quadratic equation. So in that lesson what we have seen, we have seen at it, whatever we have seen, you have observed it. Now here this is a new topic, this is a chapter number 4, quadratic equation. Now here also we will see the standard form of quadratic equation. After that we will see the methods of solving the quadratic equation, and we will see the word problem and some more nature of groups and so on. In this way we will see, and there are three methods of solving the quadratic equation in quadratic equation. So namely factorization method, completing square method, and formula method. In this way, and some few problems are based on this on this lesson, that is word problems are based. So now we are going to start it now. So lesson है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपने लास्ट ईयर पे देखी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? तो जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c ऐसा होता है, और इसमें a b c आर रियल नंबर्स होते हैं एंड e इज नॉट इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसकी डिग्री 2 होती है. मतलब डिग्री मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन टर्म्स. हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन टर्म्स उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं. ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. तो लेट्स राइट द डेफिनेशन नाउ. Definition है a polynomial having the degree, a polynomial or an equation having the degree, an equation having the degree, having an equation having the degree 2 is known as quadratic equation. Is known as quadratic equation. An equation having the degree 2 is known as quadratic equation. Standard form to stop. So what is the statement? What is the definition? An equation having the degree 2 is known as quadratic equation. An equation की जगह आप लोग a polynomial having degree 2, a polynomial whose degree is 2. इन जिसमें मतलब डिफरेंट वे में आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं. तो इसमें जैसे मैंने लिखा कि an equation having the degree 2 is known as the quadratic equation. So a quadratic equation जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग quadratic equation कहते हैं, और वन वेरिएबल होता है उसमें. दो वेरिएबल का यूज नहीं करते हम लोग, एक वेरिएबल का यूज करते हैं. अब नाउ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो लेट्स राइट द जनरल फॉर्म, द स्टैंडर्ड, और वी कैन से जनरल फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation, quadratic equation, the standard form of quadratic equation is ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers, and a is not equal to 0. A is not equal to 0. And example लेते बुक का ही 2x² minus 3x, 2x² minus 3x plus 1
is equal to 0. Another problem, this is the 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Now I have written the definition है an equation having the degree 2 is known as a quadratic equation. ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उसका जो स्टैंडर्ड से हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी। वी हैव सीन स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 या फिर ax plus by is equal to c is equal to c. So similarly while solving the problem based on the quadratic equation, here also there is standard forms and quadratic equation, and you have seen last year. So standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. हमें a की वैल्यू 0 नहीं चाहिए और बाकी a, b, c और रियल नंबर। रियल नंबर में सबको पता है रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल नंबर्स। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि a, b, c ये रियल नंबर्स रहेंगे और उसके वैल्यू कुछ भी रह सकते हैं और बस a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नाउ अभी हमें इस लेसन में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस लेसन, सो वी मस्ट नो दैट। जैसे कि हमने इसके पहले के लेसन में देखे हैं, क्या देखे इसके पहले के लेसन में कि वही कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना जरूरी है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेसन में भी आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, और उसके बाद में ही फिर आप लोग आगे कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ax स्क्वायर पहली, bx एंड c। ax स्क्वायर में x स्क्वायर फर्स्ट टर्म है जिसका कोएफिशिएंट a है, सेकेंड टर्म bx जिसका कोएफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c है। तो a, b और c जो है ये क्या है, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है और इसमें वेरिएबल a की यूज किया गया है। कौन सा वाला, x यूज किया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल रहेगा और सिंगल वेरिएबल के बावजूद उसका जो डिग्री है या फिर हाईएस्ट पावर जो है, क्या हो गया मुझे, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर ऐसा रहता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ऐसा नहीं है, 2 कंडीशन होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल, इसमें हमने x को लिया है, और दूसरी बात जिसकी डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पहली टर्म है जिसका पावर 2 है, ये दूसरी टर्म है जिसका पावर 1 है, और तीसरी टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का पावर ऑलवेज 0 होता है। तो 0, 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2 सबसे बड़ा है, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 रही तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जिसमें पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू जो है 1 है। c की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इन इसमें दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, ये एक एग्जांपल हो गया। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 5x स्क्वायर minus 7 is equal to 0. So this is also quadratic equation. This is also a quadratic equation. Why? Because there are 2 terms which 5x square and 7 minus 7. यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है। स्टूडेंट को लगेगा कि सर 3 टर्म चाहिए, 3 टर्म में से एक टर्म तो नहीं है, तो हाउ कैन वी से दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे पहली टर्म होती है कौन सी, पावर 2 की, अगर उतनी भी रही फिर भी हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको, 5x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। व्हाई इट इज सो, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है वेयर ABC
आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी और सी की वैल्यू 0 रही तो भी चलेगा, बट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग 0 सोच समझ कर हम लोग उसकी वैल्यू ले सकते हैं। मतलब हमें अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। दूसरी बात और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ही टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो अगर स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज देयर आर नॉट थ्री टर्म्स, so how can we say that it is a quadratic equation? But I would like to say that yes, it is a quadratic equation. Why? Because there is a single term and the power of the single term is 2, that is the highest power, that is the degree of the equation, so that is why it is a quadratic equation। और इसको हम लोग x square is equal to 0, it can be written as in bracket, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो x square plus 0x plus 0 is equal to 0, in this way it can be written। So our answer will be correct. So that is why I have told you that I have taken 3 examples of quadratic equation. So it means that your quadratic equation must be in this form. So this was about the quadratic equation, क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट एक ही है, ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल चाहिए। सेकेंड थिंग, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो है वो 2 चाहिए, द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी 2 and its power is it has the variable 1, that is variable 1। सेकेंड थिंग, इसमें और क्या पूरा था, बिफोर स्टार्टिंग 4.1 ये जो डिग्री है इस इक्वेशन की डिग्री जो है 2 है। इसका मतलब क्या है, हम लोग इस प्रॉब्लम में करने क्या वाले हैं कि x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, और यहाँ पर जो है इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है। तो डिग्री 2 होने की वजह से क्या है कि इसका पावर 2 होने से इसके वैल्यू जो रहेंगी वो 2 रहेंगी। किसकी वैल्यू? जो वेरिएबल यूज़ किया गया है, जैसे यहाँ पर x यूज़ किया गया, किसी भी कुछ भी होगा वेरिएबल कुछ भी होता है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी? 2 रहेंगी। अब 2 में क्या है, दोनों सेम रह सकती है, दोनों डिफरेंट रह सकती है, उसको हम लोग रूट्स कहते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसको लोग रूट्स कहते हैं, जीरोस कहते हैं, या फिर सॉल्यूशंस कहते हैं। सो this was all about the quadratic equation।